Hello students, this is the continuation of your chapter 1. In chapter 1, in the last two videos, we have discussed regarding the states of North India. Now, today we are going to study regarding the states of South India. So open your textbook on page number 4. The states located in the south of river Narmada are called southern states. In the 18th century, many small and large dynasties became independent in South India as well as North India. Let's obtain some information about the dynasties like Chalukya, Rashtrakuta, Pallav, Chola, Pandya and Chera. So, जो राज्य नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर है उसे हम सदर्न स्टेट्स दक्षिण के राज्य कहते हैं। 8वीं सदी में 8th सेंचुरी में कई बड़े और छोटे वंश इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हुए उत्तर और दक्षिण भारत में। तो अब हम चालुक्य, राष्ट्रकूटा, पल्लव, चोला, पंड्या एंड चेर डायनेस्टी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। द फर्स्ट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी वॉज किंग जय सिंह। इन 540 AD, Vatappi was made the capital and a separate independent state was established by Pulakesi first. This dynasty is known as Chalukya dynasty of Vatappi. In this dynasty, there were important rulers like Kirtivarman, Pulkeshi I and Pulkeshi II. When the power of Vatappi Chalukyas was weakened, one of their branches was established in the region between Krishna and Godavari rivers. This branch was established by Vishnuvardhan. तो चालुक्य वंश का पहला राजा था वो था किंग जय सिंह। 540 की साल में वटप्पी को राजधानी बनाया और एक अलग से स्वतंत्र राज्य पुलकेशी वन ने स्थापित किया। इस वंश को वटप्पी का चालुक्य वंश से जानते हैं। इस वंश में बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर्स शासक थे जैसे कीर्तिवर्मन, पुलकेशी I एंड पुलकेशी II। जब वटप्पी चालुक्य का पावर कमज़ोर हुआ तो उनकी एक शाखा कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच के प्रदेश में स्थापित की गई। As these Chalukya rulers of East made Vengi their capital, they were known as Vengi Chalukyas. Like Vatappi and Vengi, Kalyani also had a branch of the Chalukya dynasty. These Chalukyas were known as Chalukyas of Kalyani. तो अब ये चालुक्यास के शासकों ने जो ईस्ट के थे उन्होंने वेंगी को अपनी राजधानी बनाई और इसी कारण वो लोग वेंगी चालुक्यास के नाम से जाने लगे। वटप्पी और वेंगी की तरह कल्याणी की भी एक शाखा थी, ब्रांच थी जो चालुक्य वंश की ही थी और ये चालुक्यास कात्यायनी के चालुक्य के नाम से जाने गए। Now, page number 5. Two states of the Yadav dynasty existed around this time in Gujarat. First was Devgiri, second Dwar Samudra. The Hoysal dynasty ruled in Dwar Samudra and Devgiri was ruled by the Yadavs. Dwar Samudra was the capital of Hoysal and Devgiri, in present we know as Daulatabad, was the capital of the Yadavs. So इस टाइम पे गुजरात में यादव वंश के दो राज्य थे। पहला था देवगिरी और दूसरा द्वार समुद्र।
द्वार समुद्र में होयसल वंश का राज था और देवगिरी में यादव्स का। द्वार समुद्र जो था वो होयसल की राजधानी कैपिटल थी और देवगिरी जिसे आज हम दौलताबाद के नाम से जानते हैं वह यादवों की राजधानी थी। After the death of Kalyani Chalukya's after the decline of Kalyani Chalukya's empire in the south, new kingdoms emerged there. These included Kakatiya of Wrangler also. They ruled over the land between Krishna and Kaveri rivers. Wrangle was their capital. One more such important dynasty was the Pallava dynasty. This dynasty was founded by Bappa Dev. Their capital was at Kanchipuram. Mahendravarma I, Narasimhavarma I, Narasimhavarman II were the important rulers of these dynasties. So, दक्षिण में कालियानी चालुक्य के शासक का अंत हुआ और नए राज्य उभर आए। उनमें से एक था रंगल का काकातिया। उनका राज कृष्णा और कावेरी रिवर के बीच में था। रंगल उसकी राजधानी थी। एक दूसरा महत्व वंश था जिसका नाम था पल्लव वंश, पल्लव डायनेस्टी। ये डायनेस्टी बप्पा देव ने ढूंढी थी। उसकी राजधानी कांचीपुरम थी और महेंद्रवर्मन I, नरसिम्हवर्मन I, नरसिम्हवर्मन II ये वंश के इम्पोर्टेंट रूलर्स यानी के शासक थे। द रीजन्स वेयर तांजोर, तिरुचिरापल्ली एंड पुडुकोट्टाई आर लोकेटेड. Cholamandal ruled there during the medieval period. Tanjore was their capital. Rajaraj I, Rajadhiraj I and Rajendra I were the important rulers of the Chola dynasty. One more such ancient South Indian dynasty was Pandya. The Pandya kingdom was small, but it was a large center of trade. At that time, one of the regions which got separated from Tamil was ruled by Chera dynasty. Another name of Chera is Kerala or Malayalam. Ayan was the first ruler of Chera dynasty and Settunagavan was the best Chera ruler. जो जगह पे तांजोर, तिरुचिरापल्ली और एंड पुडुकोट्टई आए थे वहाँ पर चोला मंडल का राज मध्य युग में था। तांजोर उसकी राजधानी थी और कौन से राज्य राज करते थे तो राजा राजवन, राजाधिराज वन एंड राजेंद्र वन, ये सब वहाँ के इम्पॉर्टेंट रूलर थे चोला वंश के। और एक और इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी जो दक्षिण भारत में है वो है पंड्या। ये पंड्या राज्य छोटा था पर अगर व्यापार की नज़र से देखें तो वो बहुत बड़ा माना जाता था। उसी समय एक क्षेत्र तमिल अलग हुआ जो चेरा वंश का शासन था। चेरा का दूसरा नाम है केरला या मलयालम। अयान जो चेरा वंश का पहला रूलर था, शासक था, और सेतुगवन वो सबसे अच्छा, श्रेष्ठ, बेस्ट रूलर था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजपूत एरा। ड्यूरिंग राजपूत एरा, various Rajput dynasty ruled. At that time, there were changes in the ruling dynasties, but there was no change in the situation of the political dynasty. तो राजपूत युग के दरमियान अलग अलग राजपूत वंशों ने राज किया, तो उसी टाइम शासन के दौरान
बहुत सारे चेंजेस बदलाव भी आए, लेकिन जो राजनीतिक राजवंश था, पॉलिटिकल डायनेस्टीज, राजनीतिक राजवंश के हालात में कोई बदलाव नहीं आया, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। इन द राजपूत एरा, पोजीशन ऑफ द किंग वॉज हेरिडिटरी. It was not necessary that only the eldest son of the king could become the ruler. King used to make any one of his son as the Yuvraj or his successor, who later on became the king. There are instances which shows that people or courtiers used to elect or select the king of their choice. राजपूत युग में जो राजा था उसका स्थान हेरिडिटरी यानी वंशानुगत वारिस था। ये जरूरी नहीं था कि सबसे बड़ा बेटा ही राजा बने और शासन करे। राजा कोई भी अपने बेटों को युवराज या तो वारिस बना सकता था, जो आगे चल के राजा बन सकता था। ऐसा कोई किस्सा है जो ये बताता है कि प्रजा और कोर्टियर्स अपना राज चुनना पसंद करते थे। लाइक अशशकरा ऑफ काश्मीर वॉज चोजन बाय अ कमिटी ऑफ ब्राह्मण्स. Ministers were of two types at that time, Amatya and secretaries. Amatya's job was to negotiate and do politics, and the secretary's job was to fight and make peace. The final decision on every policy was taken by the king. At that time, the bureaucrats of the regime were holding position like Mahapratihar and Dandanayak. The head of the town council was called the mayor या तो नगरपति. तो जैसे कश्मीर का राजा यशस्कर को ब्राह्मण की कमेटी ने चुना था, वहाँ पे दो टाइप के मंत्री थे, एक था अमात्य और दूसरा सेक्रेटरीज. अमात्य का काम था निगोशिएट करना यानी बातचीत करना और राजनीति करना, और सेक्रेटरीज का काम था लड़ाई और शांति बनाए रखना. वो जो भी आखिरी फैसला लेना था वो राजा ही लेता था. उस समय ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाहों प्रशासन का स्थान था, जैसे महाप्रतिहार एंड दंडनायक, और नगर का जो मुखिया था उसे मेयर या तो नगरपति कहते थे. विलेज इंस्टीट्यूशंस occupied a very important place during the Rajput rule. These institutions had developed so well that Gram Panchayat remained important even at the time of Mughals. Just like North, Gram Panchayat occupied an important place in South also. Its head was called Mukhi or Sarpanch. Although Gram Panchayat used to give judgment in many matters, yet the king was the supreme authority in judicial system of the state. तो गांव में जो संस्थाएं थी उसकी एक इम्पॉर्टेंट जगह था राजपूत युग में. ये संस्थाएं इतनी अच्छी तरह से विकसित हुई थी कि मुगल्स के रूल के दरमियान भी ग्राम पंचायत का महत्व था. उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत में भी ग्राम पंचायत ने एक महत्व का स्थान बनाया था. उसका जो मुखिया था उसको सरपंच या मुखी कहते हैं. कई मामलों में ग्राम पंचायत अपना फैसला सुनाता था, मगर जो राजा था उसके पास ही वो अधिकार था कि राज्य के न्याय के बारे में वो कुछ भी डिसीजन ले. ट्रेड, commerce. There was a separate department for taking care of commerce related matters in the Rajput era. This department used to make arrangements for collection of tax over the foreign trade, decide the value of things
and purchase essential commodities required in the state. Main source of tax collection was the revenue, land revenue, which was 1/6 part of the production. अब राजपूत युग के टाइम पे एक अलग डिपार्टमेंट विभाग था व्यापार की व्यवस्था में, कॉमर्स रिलेटेड व्यापार व्यवस्था के बारे में। ये डिपार्टमेंट प्रदेश के व्यापार पे से जो कर इकट्ठा करने की व्यवस्था करता था। दूसरा, जो ज़रूरी चीज़ वस्तु थी उसकी कीमत और राज्य में जो जीवन जरूरी सामान की खरीदी करना, इन सब के बारे में काम करता था। जो मुख्य स्रोत था कर का, जहाँ से पैसे आते थे, वो था लैंड रेवेन्यू, ज़मीन का कर, ज़मीन का टैक्स। जो उत्पादन होता था उसमें से 1/6 पार्ट उनको भरना होता था। In Rajput era, land tax was known as bhag. It is levied on land even today also. Revenue was also collected from port, checkpost and irrigation. Stambhatirth, Khambat and Brigukach Bharuch, ports of Gujarat, were famous for foreign trade at that time. तो राजपूत युग में ज़मीन का जो कर लिया जाता था उसको भाग कहते थे। आज भी ये ज़मीन पर लादा जाता है। रेवेन्यू, जहाँ से राज्य की आय होती है, जहाँ से राज्य में पैसा आता है। पोर्ट्स यानी बंदर, और सिंचाई, इरिगेशन यानी सिंचाई, ये सब जो है ये सोर्सेज है। चेक पोस्ट यानी चकातनाका से भी लिया जाता था। इन सब जगह पे से वो लोग पैसे लेते थे और उसी से वो आय बनती थी, इनकम बनती थी। विदेश में व्यापार के लिए स्तंभ तीर्थ, जिसको आज हम खंभात से बोलते हैं, और भृगुकुच जो भरूच से जाना जाता है, ये दो जगह गुजरात के फेमस बंदर थे जहाँ से ये फॉरेन ट्रेड किया जाता था। फॉरेन अटैक्स ऑन इंडिया। Muslims invaders invaded India between the 8th and the 12th century. In the 8th century, Muhammad ibn Qasim attacked northwestern part of India in order to extend boundaries of the Arab kingdom. The army of Sabuktin also invaded from northwest part, but these invasions did not help the invaders to establish their power in India. तो मुस्लिम्स ने भारत पर आक्रमण किया 8वीं और 12वीं सदी के बीच। मोहम्मद इब्न कासिम ने भारत के उत्तर पश्चिम भाग पे आक्रमण किया ताकि वो जो अरब राज्य थे उनकी सीमा, बाउंड्रीज, उनकी हद बढ़ा सके। सबुकतीन के सैन्य भी नॉर्थ ईस्ट से आक्रमण किया, बट ये आक्रमण उन लोगों को कुछ काम का नहीं हुआ, कुछ मदद नहीं हुई इस आक्रमण से, क्योंकि वो अपना पावर, वो अपना राज भारत में एस्टैब्लिश नहीं कर सके। आफ्टर दैट, सीइंग एबंडेंट वेल्थ, सुल्तान मोहम्मद गजनी, now turn your page number 6, invaded India several times between 1000 AD and 1026 AD. सो उसके बाद मोहम्मद गजनी जो था उसने देखा कि भारत में बहुत सारा पैसा है और इसीलिए मोहम्मद गजनी ने कई बार भारत पे आक्रमण किया। और कौन से टाइम पे आक्रमण किया? बिटवीन 1000 AD and 1026 AD. The main reason of Muhammad Ghazni's invasion was India's abundant wealth. He kept on invading India again and again, and each time he invaded with more power. The Indians could not unite to form a powerful army. As a result, in 1026,
he invaded Somnath and looted a lot of wealth. उसके बाद बार बार मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया और वो करता ही गया और ऐसे उसकी ताकत बढ़ती गई। और क्या हुआ कि जो इंडियंस थे, भारतीय थे, वो एकजुट होके इतनी पावरफुल ताकतवर सेना नहीं बना सके। और उसका नतीजा क्या हुआ कि 1026 में उन्होंने सोमनाथ पे आक्रमण किया और वहाँ से सारी संपत्ति, सारा धन वो लेके चला गया। इंडिया वॉज इन्वेडेड अगेन फ्रॉम द सेम डिरेक्शन from where Muhammad Ghazni attacked about 150 years after the former invasion. After the death of Muhammad Ghazni, there were battles among them for power in Ghazni, but our rulers could not take advantage of these weaknesses as the power was not stable. मोहम्मद गजनी के बाद वापस इंडिया पे आक्रमण हुआ उसी दिशा से, उस कौन सी दिशा से जहाँ से मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था 150 ईयर्स के बाद। और मोहम्मद गजनी के डेथ के बाद बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। वो गजनी के बाद पावर के लिए, शासन के लिए बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत झगड़े हुए। बट द रूलर्स कुड नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ दिस वीकनेस। बट जो राज करते थे, जो शासक थे, वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि तब जो था वो क्या था, वो पावर वॉज नॉट स्टेबल। जो राज था, रूल था, वो स्थिर नहीं था। कॉन्सिक्वेंटली शहाबुद्दीन घोरी इन्वेडेड इंडिया इन द लेट 12th सेंचुरी। और इसका नतीजा ये हुआ कि शहाबुद्दीन घोरी 12वीं सदी में 12th सेंचुरी में भारत आया। इनिशियली ही हैड टू सफ़र सम डिफीट। शुरुआत में शहाबुद्दीन घोरी को कई बार हार झेलनी पड़ी, बट फाइनली ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल एट तराई बैटल फील्ड एंड एस्टैब्लिश्ड हिज पावर इन दिल्ली। परंतु अंत में शहाबुद्दीन घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराई के दूसरे युद्ध में हरा दिया और दिल्ली में अपना राज स्थापित कर दिया। So students, here we have completed your first chapter. Now for answers, you have to write the answers of objectives in your workbook. The rest of the answers I will send you the pic, as the book is new. So for 2-3 lessons I will send you the pics, and then you have to write the answers by yourself.